I'm tired now. It's too hot today. Sound भी support नहीं किया और बच्चा लोग काफी परेशान रह गए थे. It's a 42nd farewell of the band. You know, I have been teaching since 2009. It has been the 15th year, right? साढ़े 15 साल हो गए पढ़ाते हुए. 43 को 43 बैच का फेयरवेल हुआ है. एक बार बस चलो बैठ दीजिए और I have to tell you a lot of things. बहुत सारी चीजें तो बोलना था पर अब वैसे टाइम है नहीं. एक तो we started with the day because it's not a festival, so we had to celebrate the festival in morning. That's why we started at 1:30. इसलिए 1:30 में start हुआ. Something बस कुछ चीजें थोड़ा कितना चाहते हैं सुन लीजिए 1 से 2 मिनट. ज़्यादा हमको खुद ही नहीं लेंगे टाइम क्योंकि आप और एक बहुत ज़्यादा परेशान हैं. हमारे परेशान है सर. बस एक तो बड़ी बात है कि आप अभी यंग हैं और सबसे बड़ी बात कि यू आर स्टूडेंट ऑफ नंबर इंग्लिश लैब. ये गर्मी और ये ठंडा ये बरसात आई थिंक इट डजंट मैटर फॉर यू. एम आई राइट? यू नो अब 15 साल में when Rohit started this seminar he explained that what was the journey of number English lab. It is a glorious journey of 15 years. And you know, thousands of their students have been here, and most of are very successful. They have gone in defense, in administration right now also. Amazing to see you in the service, and many of them became the BPSC theory teachers also, right? They are very successful. They are very happy with their life because they have got the government job. As you are sitting here. In the same way they used to teach her and they used to think that may I get the government job or not. But everyone got who sacrificed their life and who did something for their life. You know one thing? हमें बस ये लगता है कि हमारे एक काजू is here, he knows well and Vikas also knows him. Azad and Sarjar. So Sarjar is posted right now in Arunachal Namsari. And before this he was posted in Leh Ladakh. And he was telling me, sir, you know, after every 2 hours from the helicopter we receive the hot water to drink. Government has spent a lot of money to provide their soldiers there. But he was telling it's a very difficult to survive there because it's a minus 52 degrees Celsius. How much? Can you imagine in winter season when the temperature going down and it's come to the 15 degrees Celsius, we won't go out from our home. Am I right? But the students who have trained there, they tell me, sir, we are serving the nation in the minus 52 degrees Celsius on the CNE border. Are you getting what I'm saying? So this is where you can see the previous moment. एक जज्बात होता है ना बच्चों के अंदर. तो आई होप ठीक है गर्मी है बरसात है सब कुछ ऐसा लेंगे ना. भगत सिंह को बर्फ के सिल्ली पे ठंडा में लटा के कोड़ा बरसाया जा रहा है. डू यू नो? और उनसे जेलर ने कहा कि भगत अभी भी समय है मिल जाओ हमसे. उन्होंने कहा ये जेलर तुम हमारे साथ इनकलाब बोल दो और भारत माता की जय बोल दो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे. तो हम उनके वंशज हैं. We don't have to scare. Am I right? यार बस थोड़ा सा ये बनो स्ट्रॉन्ग. घबराना नहीं है जरा परेशान नहीं होना है. हाँ आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट हो गए हैं. मैं अपनी भी बात आपको हमेशा कहता हूँ कि when I was in 12th class I used to go to Siwan. जब ये सड़क नहीं था खाली गड्ढा था. Do you know this? पता नहीं आप लोगों को तो काफी स्मूथ गाड़ी मिल जाती है. और जैसे अभी इलेक्शन आने वाला है तो इलेक्शन के समय में सारी गाड़ियां बंद हो जाती थी. We used to go to Siwan by cycle. साइकिल से जाना पड़ता था क्लास 12-13 किलोमीटर. 1.5 से 2 घंटा समय लगता था. और बिना खाए भी हम लोग जाते थे फिर भी क्लास करके आते थे. और we got a good rank in our exam. तो वो बेहतर दिन था यार. We were very energetic. So I would like to humble request to all of you that थोड़ा सा तपाएं अपने आप को डेडिकेट करें. दुनिया का सबसे चमकीला चीज डायमंड है. हमारा और सबसे काले चीज से बनता है सर कोयला से बनता है. हमारा कोयले का ही ना अप्रूव है वो. बस आपके जब तापमान और दाब यानी कि आपके प्रेशर और टेम्परेचर सटते जाता है तो सर थोड़ा सा दबाइए. और मैं आपसे फेयरवेल वाले बच्चों का अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहा कि जब आप अपने कंफर्ट जोन में जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप बर्बाद और टूट जाएंगे.
अपने कंफर्ट जोन से जा करके थोड़ा एडवेंचरस कीजिए। क्या कीजिए? चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगा। उसी में जीवन है, वही मजा है। सर जीवन आराम का नाम है ही नहीं, ट्रू नो? अगर आपको लगता है कि आराम हो जाए, सर आराम किसको मिलता है? जो मर गया होता है। हमारे देखो उसको कितना आराम होता है। मरे हुए हम सब हैं कि जिंदा हैं सर? तो तपाना सीखिए थोड़ा अपने आप को, ठीक है? और हमको हर सिचुएशन में सरवाइव करना है, गेटिंग? और यकीन मानिए आज जिस एज में आप हैं, जिस उम्र में हैं, अगर आप अपने आप को स्ट्रगल करना, तपाना, जूझना सीख लिए, मैं मानता हूँ आप बहुत सारे बच्चे हैं साइकिल से आते हैं, दूर से क्लास, आप कहाँ हम मतलब मैं शेयर करता हूँ कि हाँ यू कम फ्रॉम द बजरिया बाई साइकिल, गुड थिंग्स। बहुत सारे बच्चे हैं जो चौकी चाबी से साइकिल से आते हैं, सानी पसंद से आते हैं, अर्ली मॉर्निंग एट 7 o'clock दे कम, गेटिंग? तो ये अच्छी बात है, क्योंकि यही चीज आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, सिचुएशन से लड़ने के काबिल बनाएगा। वो कहानी सब लोग बताता रहता है ना कि रेशम का जो कीट होता है, तो जब निकलता है अपने वो किससे